Hello students, welcome to another session of law. In our previous classes, we have discussed about introduction of law, that is regarding how the law came from the Mesopotamian civilization, and what is the requirement of law in our society. Then we have discussed about different branches of law in India. We are focusing on India, not on the global scenario. So see, in the global scenario also the system is like that, but we are not concentrating on that thing. In India, the branches of law are classified as two law: public law, private law. Public law, that is the relationship between government, public, government to public, but government to citizen, government or any government organizations, and in the private law, that is the relationship between one individual to another individual, one person to another person. Okay, it may be of private nature and that be of public nature, because public interests are associated in public law, but in private law, public interest is associated, but in between them. So in public law we have discussed about different category, or act or law under public law. Those are constitutional law, administrative law, procedural law, and criminal law, but penal law. And in the private section, in the private law, we have discussed about the commercial law and civil law. Okay, so we have till today we have discussed about those things. I hope all get clear on that particular things. Now see, in this today we are going to discuss who can make a law. In India, as we know, different laws are, different acts are created. So we have to know who can make a law. What are the procedure to frame a law, to make a law. You might, I always advise you students, as a commerce, as you are in the commerce stream, please regularly follow the news channels, okay, the current affairs, so that you can able to adhere the current knowledge of commerce, because commerce is such a thing that regularly it keep changing. It is not science or art that it keep in a static position. No, commerce is a changing concept. It keep changing. So that's why if you want to have a updated knowledge on commerce, you must look at the updated news, and updated things, events, those are happening in the country. So as we all know, today in this current year session, session, that is parliament session, our government has amended change of their interest behavior. The law also keep on changing to cope up with the changes. For example, that is our traffic rule, traffic act, road safety act. Many fines are imposed, raised, because of the changing social phenomena, social things. Okay, so
That is called amendment. Amendment means some changes, clear, that we make in our act, clear. Clear, see, in a act, I will told you those things. In a act, a special act has various categories are there, clear. Act, as I say, law, clear. Under law there are act, clear, and in act there are some other section, subsection, clause, subclause are there, clear. So those things I will define in the later classes, clear. The symptom, clear, or the size, clear, by which a act is formulated, clear. So see, amendment means some changes are required to cope up with the changes in the society, clear. So those amendment means the changes, the upgradation, clear. It may be in adding some new thing or deleting some previous old unrequired things, clear. That is called amendment, clear. So see, so it is required to make law, clear. See, when our Constitution of India, clear, was prepared in the year 1950, clear, that time all the laws were formulated, clear. But then again new law, clear, in different law, new acts are prepared to cope up in the society, clear. So we can say who can make a law means law is already created, but now it is about that who can amend it, how it is amended, how a new act is passed, and how the old provisions are amended, updated, clear. That is about who can make a law, clear. So regarding that, we today in this class will discuss about who can make a law, okay. So say, who can make a law, okay. So see, as in India, the supreme rule book, clear, that we say the rule book is the Constitution of India, okay. So in the Constitution of India, it is clearly prescribed, clearly mentioned that who can make a law and what are the procedure of making a law, clear, making or amending a law, clear. आ रहा है समझ में? So see, in India, as per the Constitution, clear, as per the Constitution of India, clear, as per the position of authority depend on position, clear, of your authority, means you are in what position, clear, what is your authority. According to your position of your authority, any person means not you and me, clear, because we are not in a position means you must be in a position, clear, to create a law, clear. So who are they are our president, governor, yes or no, president who control the full country, and the governor who control the full state, clear. They have the supreme power, yes or no. So we can say the president, vice president also, and governor, clear, yes or no. So they are called the person, they have the supreme authority, they are in the position, clear. So as I said, position of authority of any person, number one, any person, clear. Then organization, person, organization, community means any group, communal group. As I say, as we have different community in our India, clear, Hinduism, Muslim, Christianity, Buddhism, lot of communities are there. So the community
are also able to make the law according to their requirement. Clear? And government, okay. So as per the constitution of India, as per the constitution of India, any person, okay, organization, community, okay, person, organization, community and government, as per their position of authority, can make or amend any law or act. Clear? Any act under any law or a new law, okay, to regulate and control the state, okay. आ रहा है समझ में? देखो मैंने क्या लिखा, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रेस्क्राइब हु कैन मेक ए लॉ. सो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, any person, here person means our president, okay, vice president, vice president, governor, clear, and other positional heads, that is we can say administrative, clear, administrative officers, clear, president, vice president, governor, administrative officer, they are known as the persons, clear, for special requirement, for short term requirement, clear. I will describe about that, clear. They can make law or amend some act, clear. Then organization means any organization, clear, any company, community and government means that is state government and central government. We have two government, the central government, clear, that control the full country, and the state government that control the individual states, okay. So as per their position of authority, according to their authority, they can make or amend any law, act to regulate and control the state. State means their area, their supposing area, clear, the area for which they are holding a position of authority, clear. आ रहा है समझ में? So ये सब लोग अपने हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने स्टेट को, अपने एरिया को, स्टेट मतलब मैं बार बार बोल रहा हूं, स्टेट मतलब नॉट ओनली स्टेट, राज्य, स्टेट मतलब उनका एरिया, ठीक है, अपने एरिया को कंट्रोल करने के लिए, कुछ इंप्लीमेंट करने के लिए वो लोग स्पेशली कुछ एक्ट, कुछ रूल्स बना सकते हैं और उसको अपडेट भी कर सकते हैं, चेंजेस भी कर सकते हैं, क्लियर, ओके. सो नाउ विल सी what we call those act a law. See students, that we call law, it has many other names, clear. It depend who make it, accordingly, clear, accordingly we call those things at that different names, clear. The things are same, that is rule, clear, but we call that law, clear, with different names according to the persons who make that law, okay, clear. As for example, in our commerce we say a product, clear, for example air conditioner, okay, is a product. So means from all the
scenario, it is a product, definitely. It will give some service to people, clear, to public or people, clear. But that product is somehow considered as goods, and somehow it is considered as asset, clear. So it depends upon who, clear, or what is the importance requirement of that product to different person, clear. So as like that, in law also, in rule, all are making their rules, but it depends who make that rule, clear. Accordingly we call that rule in different names, clear. So see, first, if a person make a law, what we call, clear. See, law made by special person, first thing, law or rules, clear. law means, जैसे कि मैंने बोला था, law means a system of rules and regulations, yes or no. So law or rule made by any person, clear. Any person means president, vice president, governor, okay, president, vice president, governor, and administrative head, administrative officers, okay, made by any person, president, vice president, governor, administrative officer, okay, for regulating any special event or situation. It means, it is clear that the rules made by a person, that is only for a specific event or situation. जब भी कोई एक स्पेशल सिचुएशन आएगा, इवेंट आएगा, वो लोग तभी बनाएंगे, ठीक है. और वो जो बनाएंगे उसका वैलिडिटी भी बहुत लॉन्ग टर्म नहीं है, क्लियर. द वैलिडिटी इज अराउंड 6 months and 6 weeks, ठीक है. 6 months 6 weeks, 6 months in some cases 6 months and 6 weeks, okay. So any person, governor, administrative officer, for regulating any special act or events, clear, is known as ordinance, okay. We call that law as ordinance, clear. Ordinance, clear. That law is valid for a specific period, clear. That is 6 months and 6 weeks. Somehow it is 6 months and somehow it is 6 weeks, okay, clear. So any law, act, rule made by special person, that is known as ordinance, and that ordinance is for a special situation, special event, and that is valid for a specific time period, clear. For example, you might have the knowledge about the state of Jammu Kashmir, yes or no. No, it is not a current situation, it is somehow before 1 year, clear. You might have heard about that, clear. Previously in Jammu Kashmir we have a coalition government, clear. Coordination government, coalition means दो पॉलिटिकल पार्टी मिलके एक गवर्नमेंट बनाए थे, ठीक है, जो कि था बीजेपी, ठीक है, और दूसरा जो जम्मू कश्मीर का एक लोकल पार्टी है कि नहीं. जैसे डिफरेंट एरिया में, स्टेट में लोकल पार्टी रहता है ना, वैसे जम्मू कश्मीर का एक लोकल पार्टी जो कि कांग्रेस का था, ठीक है, नॉट की प्योर कांग्रेस, दैट इज आल्सो कांग्रेस का. तो वो दोनों ने मिलके एक अपना गवर्नमेंट बनाया था,
ठीक है। तो गवर्नमेंट बनाते हैं, कैसे बनाते हैं वो लोग, वो सब आप सबको पता होगा शायद। ठीक है, मैंने क्लासेस में भी बोला है कि कैसे गवर्नमेंट होता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट होने के लिए जितना भी चाहिए ना पोजीशन, क्लियर। जैसे कि देखो, एक गवर्नमेंट बनाने के लिए वो जो असेंबली में, क्लियर, असेंबली में जितना भी सीट्स होता है, वो सीट में से 51% जिसका आया, हु सिक्योर 51%, वो पार्टी गवर्नमेंट बनाएगा। ठीक है, तो उधर क्या हुआ, जो 51% जो था, क्लियर, जो जम्मू कश्मीर है वो बीजेपी, ओके, एंड दूसरा जो था उसका मतलब नाम मुझे इतना एग्जैक्टली याद नहीं, वो जो पार्टी का नाम क्या था, बिकॉज दैट इज इररिलेवेंट, क्लियर। वो जो पार्टी का नाम, ठीक है, आप लोग बाद में देख सकते हैं। ठीक है, तो वो दोनों जम्मू कश्मीर का एक लोकल पार्टी, जम्मू कश्मीर का लोकल पार्टी मिलके वो गवर्नमेंट बनाया था। ठीक है, फिर क्या हुआ, गवर्नमेंट ने जो अपना सपोर्ट था वो वापस ले लिया, है कि नहीं। वापस ले लेने के बाद इनका जो 51% जो था सीट, वो घट के बिलो 51 हो गया, वो दैट इज अराउंड 25 to 30 हो गया। तो 30 हो गया मतलब गवर्नमेंट क्या हो गया, द गवर्नमेंट वॉज ब्रेक, क्लियर, गवर्नमेंट ब्रेक हो गया। तभी क्या हो गया, अभी तो कोई गवर्नमेंट में मतलब कोई गवर्नमेंट नहीं है, तो वो स्टेट चलेगा कैसे। तभी क्या होता है, सी इट इज अ सिचुएशन, ये अभी एक ऐसा एक सिचुएशन आ गया, क्योंकि अगर कोई स्टेट में अगर कोई गवर्नमेंट ना रहेगा तो वो स्टेट में जो लोग हैं उनका, वो उन लोगों का सब जो है एक्टिविटीज कौन कंट्रोल करेगा, क्या होगा क्या नहीं, लॉ, ठीक है, कंट्रोल, जो डिफरेंट सिस्टम वो सब कौन कंट्रोल करेगा, है कि नहीं। तो इसके लिए क्या हुआ कि इमीडिएटली द पावर रोज टू द प्रेसिडेंट, ठीक है, और प्रेसिडेंट ने अपना एक स्पेशल ऑर्डिनेंस बनाया, ठीक है, जिसके हिसाब से क्या हुआ कि दैट द कंट्रोल, द पावर, द अथॉरिटी, द कंट्रोलिंग अथॉरिटी of that particular state, clear, goes to in the hand of the president, clear। कितने दिन के लिए गया, 6 month के लिए वो ले लिए, ठीक है। फिर 6 month के बाद उन्होंने क्या बोला कि आप लोग फिर अभी नया गवर्नमेंट बना सकते हैं, है कि नहीं, क्लियर, सही है। अभी क्या हो गया, अभी वो चल रहा है, फिर जम्मू कश्मीर में नया गवर्नमेंट बनेगा। आ गया समझ में। व्हाट इज ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस मतलब द प्रेसिडेंट or some special person to control some special situation. Sometime they make a temporary law, temporary act, temporary rule which is applicable in the whole country or in the whole state or in the local area. Okay, clear, आगे समझ में। Then next है अपना, जैसे कि मैंने बोला था, और कौन कौन बना सकता है लॉ रूल, और कौन कौन ना, जो कि है सेकेंडली मैंने नंबर क्या बोला था, ए पर्सन, ए कम्युनिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर। सो सेकेंड जो है, एनी रूल और लॉ फ्रेम्ड बाय एनी ऑर्गेनाइजेशन and community for their own self, for their internal control. Internal control means to control their internal activity, their own activities, clear। What they do, they create, they frame some rule, some act, some law, okay, for their internal control, okay, or we can say for themselves only, for themselves only is known as, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे बाई लॉ। क्या बोलेंगे, बाई लॉ, है कि नहीं। बाई लॉ मतलब लॉ ने अपना जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, ये जो स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन और कम्युनिटी को पावर दिया है कि वो अपने कम्युनिटी को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करने के लिए
अच्छी तरीके से और कुछ नया चीज करने के लिए वो अपने अपने अंदर अपने लिए ही अपने लोगों को कंट्रोल करने के लिए वो कुछ स्पेशल रूल बना सकते हैं, जो कि वो स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन वो स्पेशल कम्युनिटी में ही एप्लीकेबल होगा और कहीं पे भी वो एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, क्लियर? उसको हम बोलेंगे क्या? उसको हम बोलते हैं बाई लॉ। ओके, क्लियर? ऑर्डिनेंस, बाई लॉ। ठीक है, ये है दो स्पेशल टर्म, बाई लॉ एंड ऑर्डिनेंस। क्लियर? एंड नाउ द कॉमन टर्म दैट इज लॉ, जिसको हम बोलते हैं लॉ, पूरा प्राइमरली लॉ बोलते हैं। सो व्हाट इज लॉ? द एनी रूल एक्ट, क्लियर, फ्रेम बाय गवर्नमेंट, government that is state government or central government. When a state government or a central government frame a rule, act, law to control their activities, their society, the conduct of people, clear, that is termed as law. Clear? That is the second one. And then the third one is any government. Clear? Any government, that is state government, state government and central government. Clear? Any government can frame or can frame rules, laws, act to control their state, to control their state. It is known as law. उसको हम लॉ कहेंगे। जो गवर्नमेंट जब बनाता है कुछ रूल, उसको हम लॉ कहते हैं। जो स्पेशल पर्सन बनाते हैं उसको हम ऑर्डिनेंस कहते हैं। और जब कोई ऑर्गेनाइजेशन और कम्युनिटी बनाता है उसको हम बाई लॉ कहते हैं। क्लियर? ये जो थ्री टर्म्स हैं हम यूज करते हैं लॉ को बुलाने के लिए। जैसे आपको कोई नाम से बुलाते हैं, जैसे लॉ को कोई दूसरे डिफरेंट नेम से बुलाते हैं। कोई लॉ बुलाता है, कोई बाई लॉ, कोई ऑर्डिनेंस। क्लियर? अकॉर्डिंग और दैट इज डिपेंड अपॉन हाउ इट इज फ्रेम्ड और हाउ इट इज मेड। ओके, क्लियर? देन सी स्टूडेंट्स, जो है द लॉ, द रूल मेड बाय स्पेशल पर्सन, दैट इज कमिंग ऑल any law. If we want to make any law, those are coming under constitution law, है कि नहीं? सब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, गाइडलाइन के हिसाब से ही हम बनाते हैं, है कि नहीं? देन क्या होता है सी, जो गवर्नमेंट जब बनाता है जो रूल, ओके, गवर्नमेंट जब रूल बनाता है और कोई स्पेशल पर्सन बनाता है और कोई ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिटी बनाता है अपने कंट्रोल के लिए हिसाब से, ठीक है, वो सब एक प्रोसीजर के हिसाब से ही होता है, फॉलो होता है एक प्रोसीजर, है कि नहीं? ए प्रोसीजर इज डिफाइंड टू मेक दैट लॉ। जैसे कि ऑर्डिनेंस, प्रेसिडेंट द फर्स्ट पर्सन ऑफ द कंट्री, उनको कोई भी प्रोसीजर मतलब स्ट्रिक्ट प्रोसीजर नहीं है। वो बस सिंपल अपने ऑफिशियल में जो सेक्रेटेरिएट है उनको बोलेंगे कि पहले एक जो बिल बनाओ, ड्राफ्ट मतलब जो लिखो क्या क्या है, ठीक है, सब, देन इसको वो अपने ही सिग्नेचर से पूरे देश में एनफोर्स कर देंगे, पूरा लागू कर देंगे। क्लियर? ओके। बाकी जो बाई लॉ है जो कि कम्युनिटी और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशन वो कम्युनिटी का भी जो हेड होता है कि नहीं, जो हेड ऑफ द कम्युनिटी, हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वो उनका रिक्वायरमेंट, उनका परमिशन लेना जरूरी है टू मेक ए बाई लॉ। क्लियर? बट when we are going for making a law, clear, it is a lengthy process, वो एक lengthy process है। क्यों होता है? देखो स्टूडेंट्स, जो लॉ जब बनता है ना, देखो जो ऑर्डिनेंस बनता है वो तो पूरा देश के लिए, क्योंकि प्रेसिडेंट बनाते हैं,
है कि नहीं? तो पूरा देश के लिए, ठीक है? तो प्रेसिडेंट वो खुद बना सकते हैं, ही इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द कंट्री, वो उसको उनको कोई भी प्रोसीजर का जरूरत नहीं है, वो खुद ही साइन कर दिए, वो जिस पेपर पे साइन कर दिए वो हो गया पूरा 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 मैक्सिमम वैलिडिटी, हायर देन द सुप्रीम कोर्ट, यस और नो? सुप्रीम कोर्ट से भी वो ऊपर है, क्लियर? तो वो पूरे देश के लिए लागू है। बट जो कम्युनिटी बनाते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, वो विद इन दैट ऑर्गेनाइजेशन एंड विद इन दैट कम्युनिटी, वो कम्युनिटी के लोगों के ऊपर ही वो लागू होता है, बाकी और किसी के ऊपर लागू नहीं होता है। इसके लिए उसका भी प्रोसीजर इतना टाइट और स्टैंडर्ड नहीं है। बट जो लॉ बनता है, जो गवर्नमेंट जब एक रूल बनाता है, वो पूरे कंट्री के, पूरे स्टेट के लोगों के ऊपर लागू होता है। दैट्स व्हाई व्हेन सी इट इज अ सोसाइटी, डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, है कि नहीं? डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब होता है कि इधर आप अपने खुद के मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते, अपने मर्जी से अपने लिए कुछ भी कर सकते हैं, बट दूसरों के लिए अगर कुछ करना है तो आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। यू हैव टू टेक द कंसर्न, द परमिशन, क्लियर, ऑफ ऑल सिटीजन, क्लियर, बिफोर डूइंग समथिंग फॉर देम। आप उन लोग के लिए कुछ करने से पहले आपको उन लोगों से परमिशन, उनका कंसेंट लेना पड़ता है कि? जिसके लिए इसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री। जैसे कि गवर्नमेंट बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? हम सब वोट देते हैं, सब मेजर, ऑब्वियसली माइनर तो नहीं देते हैं। माइनर क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि माइनर का माइंड उतना डेवलप नहीं होता है, ठीक है कि नहीं? माइनर का माइंड उतना डेवलप नहीं होता है, इसलिए उनको हम वो राइट्स नहीं है टू सिलेक्ट द गवर्नमेंट। मेजर पर्सन ही जो कि 18 साल के बाद, है कि नहीं? तो हम लोग ही अपना गवर्नमेंट चूज करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये गवर्नमेंट हमारे लिए काम करेगा, इसलिए हम उनको फ्रेम करते हैं। सो दैट इज कॉल्ड डेमोक्रेटिक कंट्री। तो डेमोक्रेटिक कंट्री में जो गवर्नमेंट बनाया है वो हमने बनाया, तो गवर्नमेंट भी जब हमारे लिए कोई रूल बनाएगा, हमसे डेफिनेटली वो पूछेगा कि नहीं? डेफिनेटली हमसे परमिशन लेगा, हमसे हमारा कंसर्न लेगा कि ये सही है कि गलत है कि क्या है कि नहीं? तो इसके लिए whenever a government is going to frame a rule, going to frame a law, it has to go through a lot or the lengthy process, ठीक है? वो प्रोसेस क्या है वो हम डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे अभी, ठीक है? क्लियर? चलो, सो देखो क्या होता है कि स्टूडेंट, देखो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं? द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटिंग टू रूल्स रेगुलेशन, इज अ बुक ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, जिसमें सब रूल है, सब रेगुलेशन है कि एक देश को कैसे कंट्रोल करना है, देश के लोगों को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे चलाना है कि नहीं? सो वो बोला, मतलब द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फ्रेम, जो उसके जो डिफरेंट रूल्स हैं, देयर आर 12 शेड्यूल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 12 शेड्यूल है कि नहीं? 12 शेड्यूल मतलब क्या है कि डिफरेंट थिंग्स को कंट्रोल करने के लिए वो डिफरेंट शेड्यूल बनाए हैं। शेड्यूल के हिसाब से वो एक शेड्यूल इसके लिए, दूसरा शेड्यूल इसके लिए, तीसरा शेड्यूल उसके लिए, उसके हिसाब से टोटल 12 शेड्यूल बनाया गया है। वो जो 12 शेड्यूल में अपने जो पूरे देश का जितना भी एक्टिविटीज है सब एक के अंदर है, जिसको कंट्रोल करने के लिए, अगर कंट्रोल करना है तो वो शेड्यूल में जो लिखा है हमें उसको फॉलो करना है। क्लियर? सो इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वी हैव 12 शेड्यूल्स, ओके? 12 शेड्यूल होते हैं, और वो जो 12 शेड्यूल में से द 7th शेड्यूल, कौन सा? द 7th शेड्यूल इज डील्स विथ मेकिंग ऑफ ए लॉ। जो 7वां शेड्यूल है, 7th शेड्यूल डिस्क्राइब हु कैन मेक ए लॉ, क्लियर, एंड व्हाट इज द प्रोसीजर, प्रोसीजर क्या है और कौन रूल और लॉ बना सकता है, द 7th शेड्यूल। बाकी के जो शेड्यूल है वो हमारे लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है? अभी के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, फॉर नॉलेज के लिए तो सब रिक्वायरमेंट है, बट अभी आपके लिए वो रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए मैं वो नहीं बोल रहा हूं, ठीक है? कौन सा शेड्यूल किसके लिए है वो आप सब
खुद भी देख सकते हो, ठीक है। आप सिर्फ गूगल में जाके सर्च करोगे कि द शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो पूरा आ जाएगा कौन सा शेड्यूल में क्या क्या पार्ट्स आता है, ठीक है। सो द 7th शेड्यूल इज अबाउट who can make a law and what is the procedure. Okay, clear? So we have 12 schedules. Clear? वो 12 शेड्यूल में से the 7th schedule state the procedure for making a law. लॉ कैसे बनाते हैं वो 7th शेड्यूल में स्टेट किया गया है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दैट 7th शेड्यूल, क्लियर, लॉ कैन मेड इन बेसिकली 3 लिस्ट आर देयर, 3 लिस्ट, क्लियर, 3 लिस्ट है जिसके हिसाब से एक रूल बन सकता है। ओके, वो जो 3 लिस्ट है क्या है? द 3 लिस्ट आर नंबर 1 यूनियन लिस्ट, number 2 state list, and number 3 is concurrent list. concurrent list, ठीक है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। ये जो 3 लिस्ट है, 3 लिस्ट के हिसाब से बन सकता है। देखो मैं बताता हूं, यूनियन लिस्ट मतलब यूनियन गवर्नमेंट, बस स्टेट गवर्नमेंट, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यूनियन लिस्ट बताता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ कैसे बना सकता है, कि हु कैन मेक ए लॉ, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक ए लॉ, कैसे, द प्रोसीजर उसमें पूरा डिफाइन है। स्टेट लिस्ट, द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लिस्ट बताता है कि स्टेट गवर्नमेंट रूल बना सकता है। ऑन कंकरेंट, बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, बोथ दोनों मिलके बना सकते हैं। मतलब जब भी कोई रूल बनेगा तो दोनों स्टेट और सेंटर मिलके बनाएंगे। मतलब ऐसा नहीं कि सेंटर अपने हिसाब से बना लेगा, है कि नहीं, विदाउट सीकिंग और आस्किंग द गाइडेंस परमिशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। और ऐसा स्टेट भी ऐसा कुछ बना सकता है विदाउट सीकिंग और विदाउट टेकिंग द परमिशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, सॉरी द सेंट्रल गवर्नमेंट। वो अपने हिसाब से अपने स्टेट को कंट्रोल करने के लिए बना सकते हैं। बट कंकरेंट लिस्ट में जो रूल बनेगा, जो लॉ बनेगा, उसके लिए स्टेट और सेंटर को मिलके डिस्कस करना पड़ेगा और उसको फिर बनाना पड़ेगा। ओके, क्लियर, आ गया समझ में? तो ये 3 लिस्ट को हम अभी डिस्क्राइब करेंगे कि ये तीनों लिस्ट के अंदर जो है रूल कैसे बनता है। ओके, चलो देखते हैं। ओके, सी स्टूडेंट्स, फर्स्ट यूनियन लिस्ट, फर्स्ट इज यूनियन लिस्ट, क्लियर। सो क्या है यूनियन लिस्ट? इट डिफाइंस द प्रोसीजर ऑफ मेकिंग लॉ बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली। इट डिफाइंस द प्रोसीजर, it defines the procedure of making a law by central government only। सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही बना सकता है, ठीक है। द प्रोसीजर इज, जो उसका जो प्रोसीजर क्या है, उसका प्रोसीजर कैसे एक सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बनाएगा। ओके, क्लियर। तो सी कैसे बनता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, वो जो प्रोसेस का फर्स्ट पार्ट है, ए स्टैंडिंग कमिटी। ए स्टैंडिंग कमिटी फॉर्मुलेटेड एंड दे ड्राफ्ट ए बिल रिगार्डिंग द लॉ दे वांट टू मेक। ए स्टैंडिंग कमिटी, स्टैंडिंग मतलब एक टेम्पोररी, कुछ चुनिंदा लोगों को लेके, क्लियर। जैसे होता ना अपना हर डिपार्टमेंट होता है, हर एक डिपार्टमेंट है कि नहीं, जैसे कि फाइनेंस डिपार्टमेंट है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, माइंस डिपार्टमेंट है, फॉरेन करेंसी का है कि नहीं। ये जो वुमेन, क्लियर, लेबर, सबका जो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं हमारे गवर्नमेंट में,
तो सोचो कि जब भी वो सोचेंगे कि चलो ये डिपार्टमेंट को रिलेटेड, ये चीज को रिलेटेड एक लॉ बनाते हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, डेफिनेटली वो डिपार्टमेंट के रिलेटेड कुछ सेक्रेटेरिएट्स को चुनेंगे, क्योंकि उनके पास ही नॉलेज है उसके बारे में, है कि नहीं। अगर सोचो कि कॉमर्स का एक कुछ बनाना है, कुछ प्रोग्राम है, तो किसको हम बुलाएंगे एज ए गेस्ट? ऑब्वियसली द पर्सन्स, द एमिनेंट पर्सन्स बिलोंग्स टू द कॉमर्स स्ट्रीम। क्लियर? वैसे ही एक स्टैंडिंग कमिटी मतलब जो चीज का रूल बनाना वो चाहता है गवर्नमेंट, वो क्या करेगा, कुछ मेंबर्स को लेके एक स्टैंडिंग कमिटी बनाएगा। ठीक है, सो क्या होता है, द स्टेप्स। पहला है स्टेप 1, ए स्टैंडिंग कमिटी, ए स्टैंडिंग कमिटी is formulated, a standing committee is formulated, okay, and they, वो लोग क्या करेंगे, they draft a bill, they draft a bill regarding the law they want to make। क्या बनाना है उसके रिलेटेड एक ड्राफ्ट बनाएंगे, बिल बनाएंगे। दे ड्राफ्ट ए बिल, जैसे कि अगर हम जो प्रोडक्ट लाते हैं उसके रिलेटेड जो यूजर मैनुअल में रहता है ना, वैसे ड्राफ्ट मतलब वो रूल में क्या होगा, किधर एप्लीकेबल होगा, किस पे लागू होगा, क्या क्या उसका प्रोसीजर है, कौन फॉलो करेगा, कैसे फॉलो करेगा, वो तोड़ने से क्या होगा, मतलब द डिटेल, क्लियर, द नेचर, द स्कोप, द ऑब्जेक्टिव, द इंपोर्टेंस, द नीड, ओके, द प्रोसीजर, द सब्सिक्वेंट पनिशमेंट फॉर वायलेटिंग दैट रूल, सब जो है ना वो रूल को रिलेटेड, वो लॉ को रिलेटेड सब वो एक बुक में, वो जो बुक को बोलेंगे एक बिल। जैसे हम बिल बनाते हैं ना, आप दुकान में जाते हो चीजें लेने के लिए, फिर होने के बाद वो बिल बनाता है ना, ये है बिल, ये लो, तो दैट इज लाइक दैट, एक डिटेल्ड प्रिस्क्रिप्शन, ए नोटबुक, क्लियर, जिसको हम बोलते हैं बिल, जिसमें क्या होता है, पूरा डिटेल मेंशन होता है कि वो जो लॉ कैसे क्या है, किसके लिए एप्लीकेबल है, एंड वगैरह वगैरह। ठीक है, तो वो जो स्टैंडिंग कमिटी है ना, वो पहले क्या करेगा, एक बिल बनाएगा कि ये इसको रिलेटेड एक रूल बनाना है। ओके, क्लियर। पहले तो क्या होगा, वो जो डिपार्टमेंट का जो मिनिस्टर है कि नहीं, द मिनिस्टर, उसको लगेगा कि चलो ये हम एक रूल बनाते हैं, वो एक स्टैंडिंग कमेटी बनाएगा, उनको बोलेगा कि एक बिल बनाओ वो रूल को लेके। ठीक है, तो चलो स्टैंडिंग कमेटी ने एक रूल बना, मतलब बिल बना दिया, हो गया बिल होने के बाद फिर क्या होगा, द बिल फॉरवर्डेड टू द कैबिनेट फॉर अप्रूवल। ओके, the bill forwarded to the cabinet for approval। स्टैंडिंग कमिटी ने जो बनाया है जिसके हिसाब से फिर वो जो कैबिनेट में जाएगा, कैबिनेट मतलब वो जो डिपार्टमेंट, जिसमें कि कैबिनेट मतलब जो कि अपने जो डिपार्टमेंटल मिनिस्टर होंगे, उनके सेक्रेटेरिएट होंगे, मतलब नॉलेजेबल पर्संस होंगे, दैट इज द कैबिनेट, है कि नहीं, जिसमें और कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर होंगे, उनके जो स्पेशल क्लियर जो मिनिस्टर्स होंगे, उनके सलाहकार होंगे, सेक्रेटेरिएट होंगे, सब होंगे, दैट इज द कैबिनेट। जो आपको पता है कैबिनेट, ठीक है, वो कैबिनेट में जाएगा अप्रूवल के लिए। ठीक है, कि ये बिल लो, ये देखिए सर आप जो बोले थे उसके हिसाब से हमने बिल बनाया है, आप थोड़ा इसे देख लीजिए कि आपने जो बोला था उसके हिसाब से ये बना है कि नहीं। अगर कुछ चेंजेस करना है तो वो इमीडिएटली बोल देंगे कि ये चेंज करो, फिर उधर जाएगा, फिर आ जाएगा अपडेट अप्रूवल होने के लिए कि चलो बिल हो गया, सब सही है, अभी अप्रूवल भी हो गया। अप्रूवल मिलने के बाद आप लोग बोलोगे कि सर वो तो हमारे पास तो नहीं है, हमें तो नहीं पता क्या होगा, हो गया हमारे पास आया कि नहीं। देखो क्या होता है, देखो जो कैबिनेट जो हमने बनाया, जो गवर्नमेंट बनाया, वो किसने बनाया, हमने बनाया, हमने ही बनाया। तो वो गवर्नमेंट अगर वो सोच रहा है कि ये बनाना है,
किसके हिसाब से? हमारे हिसाब। हम सोच रहे हैं कि ये बनना चाहिए था, वो उनके दिमाग में है, क्योंकि वो लोग हमसे बात करते हैं, डिस्कशन होता है, तो वो दिमाग में कि लोग बोल रहे थे कि ये होना चाहिए, इसलिए वो ये रूल बनाने के लिए कोशिश करें। वो था, फिर भी वो हमारे पास फिर से आएगा। कब आएगा? कि देखो, द बिल इज पब्लिश्ड इन पब्लिक फॉर ओपिनियन। फिर क्या होगा? वो जो बिल को है ना, वो जो बिल है, अभी वो लॉ नहीं बना है कि नहीं? फिर सिर्फ बिल ही है। लॉ कब बनेगा? जब वो क्या होगा? क्रिएटेड एंड एनफोर्स्ड। लॉ कब बनता है? जब एक मतलब जो रूल बनता है कि नहीं? बनने के बाद उसको अप्रूव करना पड़ेगा, उसको एनफोर्स करना पड़ेगा। एनफोर्स करने के बाद, एनफोर्स मतलब सील लगेगा प्रेसिडेंट का कि ये सही है, तभी वो पूरा कंट्री में लागू होगा। अभी वो लागू नहीं हुआ है, वो बिल है, वो बिल पब्लिश किया जाएगा पब्लिक में, जैसे कि सोशल मीडिया में, न्यूज़पेपर में आएगा, क्लियर? अपने जो ऑफिशियल गैजेट्स में आएगा लोगों के पास, ठीक है? लोगों के पास मतलब आपके घर मतलब पर्सनली आपके एड्रेस पे नहीं आएगा, पब्लिकली आएगा। आपको जाके देखना है, सोचना है, डिसाइड करना है, एनालिसिस करना है कि ये सही है, गलत है, इसमें क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए रिगार्डिंग, ठीक है? तो उसके हिसाब से बिल आएगा ओपिनियन के लिए। ओपिनियन होने के बाद कि चलो हो गया, ओपिनियन हो गया, जो आप ओपिनियन देने था सब आपने दे दिए थ्रू वो, उसका एक लिंक रहता है, एक कम्युनिकेशन चैनल रहता है, जिससे कि आप अपडेट दे सकते हो कि सर ये है, ठीक है? तो चलो हो गया, क्या हो गया? ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन हो गया। फिर पब्लिक ओपिनियन होने के बाद द नेक्स्ट प्रोसेस इज द बिल इज प्रेजेंटेड। द बिल इज प्रेजेंटेड, क्लियर? किधर? प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट फॉर डिस्कशन एंड अप्रूवल। डिस्कशन एंड अप्रूवल। फिर क्या होगा? वो जो बिल, जो लॉ जिसके हिसाब से होगा, मतलब जो डिपार्टमेंट के हिसाब से, वो डिपार्टमेंट के जो मिनिस्टर हैं वो क्या करेंगे? वो बिल को लाके जो है पार्लियामेंट में प्रेजेंट करेंगे कि सर ये मैं एक नया रूल देश के लिए बनाना चाहता हूं, जिससे कि लोगों को आसानी हो, ठीक है? वो लेके आएंगे, प्रेजेंट करेंगे। मतलब जो है ना बिल में, सब वन बाय वन पूरा पढ़ेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑल द इलेक्टेड एमपी एंड एमएलए। एमपी एमएलए जिसको कि हमने वोट देके चुना है, तो वो क्या होगा? एज वी नो वी हैव 2 हाउस इन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट मतलब अपना 2 हाउस है, एक तो है अपर हाउस, दूसरा है लोअर हाउस। अपर एंड लोअर, क्लियर? तो फर्स्ट वो जाएगा किधर? अपर हाउस में। अपर हाउस मतलब लोकसभा। पहले किधर जाएगा? लोकसभा में वो बिल जाएगा। मतलब जो प्रेसिडेंट है ना, सॉरी जो मिनिस्टर, वो बिल लेके जाएंगे किधर? लोकसभा में लेके जाएंगे, पूरा पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद हमारे लोकसभा में जितने भी एमपीज हैं हमारे एरिया के, हमने बोला था सर को कि सर ये हमारा प्रॉब्लम है, वो भी उनके दिमाग में है। तो जब ये मिनिस्टर पढ़ेंगे, उनका चलो ये भी लोग बोल रहे थे कि हाँ ये हमें चाहिए, तो उनके माइंड में रहेगा कि यस आई एम सपोर्टिंग दिस बिल, मैं ये बिल को सपोर्ट करता हूं, ठीक है कि नहीं? ये रूल बनना चाहिए, ये सही है, ये देश के लिए, लोगों के लिए अच्छा है कि नहीं? वो बोलेंगे। मतलब ईच एंड एवरी एमपी क्लियर विल वोट फॉर अप्रूवल, और मतलब टू अप्रूव और टू नॉट अप्रूव। क्लियर? अप्रूव करना है कि रिजेक्ट करना है, उसके लिए वो वोट करेंगे कि अप्रूव और रिजेक्ट। क्लियर? मतलब वो जो मिनिस्टर वो पूरा का पूरा बिल पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद क्या होगा कि उस पे वोटिंग होगा कि ये जो बिल प्रेजेंट हुआ है ये किस किस को अच्छा लगा, कौन कौन इसके सपोर्ट में है और कौन कौन इसके अपोज में है, ठीक है? फिर आएगा, आने के बाद वैसे ही अगर मैक्सिमम मिल गया है कि नहीं, 51% अगर वोट आ गया कि अप्रूव, इट मींस इट इज अप्रूव्ड इन द लोकसभा,
ओके, इट इज, वी कैन से दैट इट इज अप्रूव्ड, मींस पास्ट, जिसको हम बोलते हैं अप्रूव्ड और पास्ट। पास हो गया, लोकसभा में पास हो गया। लोकसभा में पास होने के बाद फिर वो किधर जाएगा? फिर वो जाएगा द लोअर हाउस, अपर हाउस के बाद जाएगा लोअर हाउस, दैट इज राज्यसभा। ओके, राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा में कौन है? राज्यसभा में भी एमपीज हैं, जो कि वही, मतलब लोकसभा में अलग रहते हैं, राज्यसभा में अलग रहते हैं, दोनों का अलग अलग काम है, ठीक है, उसके हिसाब से। सो लोकसभा में पास हो गया। लोकसभा में जो एमपीज थे उन लोगों ने बोल दिया कि यस अप्रूव। बाकी और भी एमपीज हैं जो कि राज्यसभा में हैं, फिर उन लोग के पास जाएगा, वो लोग भी बोलेंगे कि यस अप्रूव्ड, है कि नहीं? तो इधर भी हो गया, किधर क्या हो गया? पास्ड हो गया। क्लियर? दोनों हाउसेस में पास हो गया। ये एक केस पास हो गया। और बोलो कि फेल हो गया, रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट मतलब आप तो पूरा का पूरा रिजेक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि देखो, जो गवर्नमेंट है ना, सोचो कि अपना जो गवर्नमेंट है उधर 51% सीट एमपी हमारे हैं, इसलिए तो हमने गवर्नमेंट बनाया है कि नहीं? ऑब्वियसली बनाना है, बनाया है। तो जब हम बिल लेके जाएंगे तो डेफिनेटली 51% एमपी हमारे ही हैं, तो डेफिनेटली हमको अप्रूवल मिलेगा ही मिलेगा, है कि नहीं? मिलेगा डेफिनेटली। बट उधर क्या होता है कि वो ये होने के बाद और भी कुछ है जो कि 49 एमपीज, वो लोग बोले कि सब सही है, बट कुछ क्लॉजेस हैं, कुछ चीजें हैं जो कि सही नहीं लग रहा है, उसको हमें चेंज करना चाहिए। तो क्या होगा कि ये जो डिपार्टमेंट के जो मिनिस्टर है उसको उस चीज को कंसीडर करेंगे। ओके, कंसीडर करने के बाद वो क्या करेंगे? जो जो चीजों को उन्होंने चेंज करने के लिए बोला था वो क्या करेंगे? वो फिर ये बिल को भेज देंगे किधर? ये जो स्टैंडिंग कमेटी के पास। स्टैंडिंग कमेटी क्या करेगा? जो जो चेंजेस करने के लिए बोले थे वो कर देंगे, फिर वो प्रोसेस में आएगा लोकसभा में, ठीक है? फिर आने के बाद वो देखेंगे कि चलो जो जो चेंजेस हमने बोला था वो हो गया, फिर ये जो 49 ना बोल रहे थे ये भी बोल देंगे हाँ चलो सही है, अभी आ गया 80, क्योंकि 10-20 तो ऐसे ही रहते हैं जो कि, है कि नहीं, बागड़ बिल्ले, वो बोलेंगे, मतलब कोई भी अच्छा बोल दो वो बोलेंगे ना, है कि नहीं? तो हो गया अप्रूव, तो हो गया पास। फिर जाएगा राज्यसभा में। राज्यसभा में भी बोलो पास हो गया, और कि वैसे ही कि उन्होंने भी बोला कि ये चेंज चाहिए, फिर वो जाएगा इधर, फिर आएगा, है कि नहीं? उधर भी चलो हो गया। ये होने के बाद आफ्टर द बिल is passed in the Lok Sabha, in the Lok Sabha, that is in the parliament, then the next step, then the bill is sent to the office of president, to the president's office. Next है the bill sent to president's office for his approval. ओके, प्रेसिडेंट के ऑफिस पे जाएगा अप्रूवल के लिए। क्लियर? जाने के बाद क्या होता है? द प्रेसिडेंट पास द बिल एंड एनफोर्स इट। प्रेसिडेंट ने क्या किया? प्रेसिडेंट ने बिल को पास कर दिया, पास हो गया, प्रेसिडेंट पास कर दिए, मतलब इट इज नाउ एनफोर्स। जो दिन पे उन्होंने पास किया वो दिन से वो जो बिल इज नाउ टर्म्ड एज लॉ और एक्ट, एंड वो बिल पूरे के पूरे देश में, इन द होल कंट्री, जो कि देखो पहले क्या होता था, ईच एंड एवरी एक्ट में क्या रहता था? एक क्लॉज रहता है, इट इज एप्लीकेबल इन होल इंडिया एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर। वो पहले रहता था, पहले एक सेंटेंस रहता था। आपने अभी शायद आप जो बुक्स देखोगे आपके पास जो है उसमें में भी चेंजेस हो गया होगा शायद, अगर लेटेस्ट एडिशन आया होगा तो उसमें वो जो है ना, वो जो वर्ड एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर वो रहेगा। अगर अपग्रेडेड होगा, रिप्रिंटेड होगा मटेरियल, तो ये जो सेंटेंस नहीं रहेगा। क्यों? अभी जो अपने जो आर्टिकल थे कि नहीं, 35, आर्टिकल 35A और 370,
वो दोनों हट गया। हट गया मतलब जो जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस रहता था वो भी हट गया। एज लाइक अदर स्टेट, अभी जम्मू कश्मीर भी इंडिया का एक नॉर्मल स्टेट ही है। जैसे कि हम बोलते थे कि प्रेसिडेंट ने अप्रूवल कर दिया, यूनियन गवर्नमेंट में एक रूल बनाया, तो जैसे कि पूरा कंट्री में लागू होता था। कोई स्टेट नहीं बोलता था कि हमें नहीं पूछा, उड़ीसा नहीं बोलता था हमें नहीं पूछा, आंध्र नहीं बोलता था हमें नहीं पूछा, कर्नाटका नहीं बोलता था हमें नहीं पूछा, बट जम्मू कश्मीर को पूछना पड़ता था। बट अभी वैसा नहीं है, एक बार लागू हो गया मतलब पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर में भी लागू है। बिकॉज जम्मू कश्मीर आल्सो नाउ ए ऑर्डिनरी स्टेट एज लाइक द अदर स्टेट्स ऑफ कंट्री। क्लियर? सो इट इज एप्लीकेबल इन होल इंडिया। ठीक है? एंड वन मोर थिंग, द एनी एक्ट, एनी लॉ clear made by union government under union list is applicable to whole country, whole country, पूरे कंट्री के ऊपर वो लागू है। ओके? क्लियर? आगे समझ में स्टूडेंट्स? इतना आगे समझ में कैसे बनता है लॉ? फिर ये हो गया यूनियन लिस्ट। बाकी नेक्स्ट है अपना दूसरा स्टेट लिस्ट। सेकेंड इज स्टेट लिस्ट। ओके? स्टेट लिस्ट थोड़ा ही चेंजेस है, ज्यादा चेंजेस नहीं है, सेम प्रोसीजर है। क्या है देखो, इट डिफाइन द प्रोसीजर ऑफ मेकिंग ए लॉ बाय स्टेट गवर्नमेंट ओनली। क्लियर? ओनली स्टेट गवर्नमेंट के पास ही अथॉरिटी है टू मेक लॉ अंडर स्टेट लिस्ट। द प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर वैसा ही है, सेम। ए स्टैंडिंग कमिटी इज फॉर्मुलेटेड। क्लियर है कि नहीं? स्टैंडिंग कमिटी इज फॉर्मुलेटेड एंड दे ड्राफ्ट ए बिल रिगार्डिंग द लॉ दे वांट टू मेक। वैसा ही है, अपने जो स्टेट गवर्नमेंट जो है उनका भी एक स्टैंडिंग कमिटी बनेगा, वो एक बिल बनाएंगे, ड्राफ्ट करेंगे, एक बिल ड्राफ्ट मतलब बनाएंगे। द बिल फॉरवर्डेड टू द कैबिनेट फॉर अप्रूवल। कैबिनेट मतलब सेंट्रल कैबिनेट में नहीं जाएगा, स्टेट कैबिनेट में जाएगा। जो स्टेट गवर्नमेंट के जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनका जो है ग्रुप ऑफिस उधर जाएगा, वो लोग देखेंगे, अप्रूव करेंगे। ठीक है? अप्रूव होने के बाद द बिल इज पब्लिश्ड इन द पब्लिक फॉर ओपिनियन। मतलब जो स्टेट का होगा उसी स्टेट में ही पब्लिश होगा, अदर स्टेट में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे कि उड़ीसा में अगर एक एक्ट पास होगा तो वो उड़ीसा में ही एप्लीकेबल है, अदर स्टेट में एप्लीकेबल नहीं है। तो अदर स्टेट में अगर एप्लीकेबल नहीं है तो वो स्टेट के लोगों का परमिशन लेने का कोई जरूरत नहीं है कि नहीं? तो उड़ीसा के लोगों का ही परमिशन लेना है, कंसेंट लेना है, इसलिए उड़ीसा में ही वो पब्लिश होगा। क्लियर? फिर चलो ओपिनियन मिल गया। ओपिनियन मिलने के बाद द बिल इज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट। इधर तो हम पार्लियामेंट नहीं बोलेंगे, अपना बिल पार्लियामेंट में नहीं जाएगा, है कि नहीं? स्टेट बिल वो किधर जाएगा? द बिल इज प्रेजेंटेड इन किधर आएगा? जो कि स्टेट में सब कुछ डिस्कस होने के लिए, डिसाइड होने के लिए एक अलग हाउस रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, है कि नहीं? जैसे कि पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, है कि नहीं? जिसके जो मेंबर्स होते हैं उनका हम क्या बोलते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट लोकसभा राज्यसभा उसका कोई मतलब नहीं है, पार्लियामेंट दोनों को पार्लियामेंट बोलते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एमपी, एमएलए किसको बोलते हैं? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब एमएलए मतलब वो एक स्टेट का अथॉरिटी है, एमपी मतलब एक सेंटर का। क्लियर? सो लेजिस्लेटिव असेंबली में जाएगा फॉर डिस्कशन एंड अप्रूवल। ठीक है? तो लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब जो दो हाउस तो नहीं है, बस एक ही हाउस है कि नहीं? एक ही हाउस है लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब। दैट इज क्या है वो लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब है अपना क्या? विधानसभा। विधानसभा जिसको हम क्या बोलते हैं? विधानसभा बोलते हैं। लोकसभा, राज्यसभा सेंटर में और स्टेट में उसको हम बोलते हैं विधानसभा। फिर वो विधानसभा में जाएगा, विधानसभा में जाने के बाद वो वैसे ही डिस्कशन होगा। होने के बाद उधर भी पॉजिटिव मतलब जो कि रूलिंग पार्टी है, ऑपोजिशन पार्टी है, उधर भी हाँ ना होगा। हाँ हो गया तो पास्ड। अगर बोलो कि ना बोले नहीं होगा तो वैसे ही चेंजेस होगा, वो फिर जाएगा बिल, फिर चेंजेस होंगे, चेंजेस होने का फिर आ गया विधानसभा में पास हो गया। ओके? विधानसभा में पास होने के बाद फिर जैसे यूनियन लिस्ट में वो बिल
अगर प्रोसीजर हो गया फॉलो, प्रोसीजर फॉलो होने के बाद हम जो सुप्रीम अथॉरिटी होते थे उनके पास लेते थे, प्रेसिडेंट के पास। इधर स्टेट का जो सुप्रीम अथॉरिटी है कौन है? गवर्नर है कि नहीं, उनके पास जाएंगे। किधर? द बिल इज सेंड टू द गवर्नर फॉर अप्रूवल। ओके, गवर्नर के पास जाएगा अप्रूवल के लिए। चलो, गवर्नर ने अगर ग्रीन सिग्नल दे दिया, उसको अप्रूव कर दिए, देन द बिल अप्रूव्ड बाय गवर्नर एंड एनफोर्स्ड इन द होल स्टेट। वो स्टेट में, जो स्टेट ने बनाया वो स्टेट में ही वो लागू होगा, अगर और कोई बाहर नहीं जाएगा। बाहर में उसका रूल अलग है, जैसे कि ट्रैफिक रूल उड़ीसा में अलग है, आंध्रा में अलग है कि नहीं, वेस्ट बंगाल में अलग है, महाराष्ट्र में अलग है, क्योंकि वो स्टेट रूल है, वो स्टेट अपने अपने हिसाब से बनाते हैं। क्लियर? आ गया समझ में? ऐसे बनता है रूल। और दूसरा किस सोचो स्टूडेंट, आप लोग सोचोगे कि प्रेसिडेंट क्यों बोलेंगे, हाँ क्यों बोलेंगे? वो अगर मना कर दिए सर, गवर्नर अगर मना कर दिए सर, तो वो मना नहीं करेंगे, चांसेस बहुत कम है। क्यों? क्योंकि जो प्रेसिडेंट है वो भी हमारे हैं, जो गवर्नर है वो भी हमारे ही हैं, है कि नहीं? तो इसलिए वो ना बनेंगे। अगर ना कर दिए तो चलो, कि ये भी बोलते हैं, अगर सोचो कि वो अप्रूव ना किए तो वो बिल हो गया कैंसल, ठीक है, कैंसिल हो गया और उसमें कुछ चेंजेस नहीं है, पूरा कैंसिल हो गया, वो प्रोसीजर पूरा गया। फिर अगर दूसरी बार बनाना है तो फिर से नया सा बनाना है, फिर लेके पास करवाना है। ओके, क्लियर? दैट इज यूनियन लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट एंड द कॉन्करेंट लिस्ट, वो ऐसा ही प्रोसीजर है। और क्या होगा कि स्टेट और गवर्नमेंट कैबिनेट मिलके उसको डिस्कस करेंगे, फिर उसको अप्रूव करेंगे, ठीक है? वो भी प्रेसिडेंट के पास ही अप्रूवल के लिए जाएगा। ओके, क्लियर? आ गया समझ में? सही है। बस ये होता है कि हु कैन मेक ए लॉ। ओके, क्लियर? हो गया? चलो, इसके साथ हो गया खत्म अपना इंट्रोडक्शन टू लॉ। क्लियर? सो आई होप अभी मैंने जितना भी आपको बोला, जितना भी आपको समझाया, वो सब आपके दिमाग में अच्छे से गया होगा। अगर कुछ भी अगर उसके रिलेटेड डाउट्स है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, ठीक है? वो जो डाउट्स है मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। ओके, क्लियर? दैट इज द ब्रीफ सिनेरियो ऑफ द क्या, द लीगल फ्रेमवर्क ऑफ आवर कंट्री। क्लियर? ऐसे रूल्स बनते हैं, ये रूल बनते हैं, ऐसे लागू होते हैं। क्लियर? ओके, फिर अभी हम क्या देखेंगे इन आवर नेक्स्ट क्लास? क्लियर? वी विल कंसेंट्रेट ऑन द स्पेसिफिक टॉपिक दैट इज आवर मर्केंटाइल और कमर्शियल लॉ। ओके, क्लियर? सो स्टूडेंट्स, क्या है देखो, और एक चीज है, मैंने बोला लॉ क्या है, एक्ट क्या है, आपने अच्छे से समझ में आ गया कि लॉ मतलब एक पूरा सिस्टम है, एक्ट उसके अंदर आता है। जैसे कि मैंने बोला कमर्शियल लॉ, कमर्शियल लॉ मतलब द लॉ रिलेटिंग टू एनी मर्केंटाइल ट्रांजैक्शन बाय द मर्केंटाइल पर्संस ऑफ मर्केंटाइल प्रॉपर्टी, वो है कमर्शियल लॉ। एक्ट उसके अंदर जो जो आता है, कॉन्ट्रैक्ट, सेल ऑफ गुड्स, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, पार्टनरशिप, कंपनी, इंश्योरेंस, बैंकिंग, वो सब आता है एक्ट। आगे समझ में? तो उसके रिलेटेड और क्या होता है स्टूडेंट, देखो ये जो लॉ और एक्ट के बीच में हमेशा स्टूडेंट्स को एक कंफ्यूजन रहता है, ठीक है? इसलिए मैंने क्या किया है कि लॉ और एक्ट को डिफरेंशिएट कर दिया है अच्छे से, ताकि वो चीज को लेके आपके दिमाग में कोई भी डाउट ना हो, ठीक है? तो आप लोग एक काम कीजिए, वो जो है ना डिफरेंस, वो मैं दिखा रहा हूं आपको, आपके लिए प्रेजेंट कर रहा हूं, आप वो चीज को भी लिख लीजिए, ठीक है? द डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड एक्ट। ओके, चलो, सो the difference between law and act। ओके, तो जैसे कि मैं बोला बेसिस इज इंपॉर्टेंट। बेसिस
ये हो गया लॉ, ये हो गया एक्ट। ठीक है, क्या है पहले बेसिस हम देखेंगे मीनिंग। मीनिंग क्या है दोनों का? ओके, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि लॉ इज ए सिस्टम ऑफ प्रिंसिपल एंड रूल्स विच गवर्न द, लॉ इज द सेट ऑफ rules and principles which govern the affairs of, which govern the affairs of society, and enforced by गवर्नमेंट एनफोर्स करता है कि नहीं? एक्ट के बारे में क्या बोलेंगे कि एक्ट रेफर्स टू ए स्पेसिफिक पर्सन। ओके, क्या बोलेंगे? एक्ट रेफर्स टू ए स्पेसिफिक portion of law created by government। क्लियर? लॉ के अंदर ही फिर गवर्नमेंट बनाता है, क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट। क्लियर? टू कंट्रोल एंड रेगुलेट ए स्पेशल केस को कंट्रोल एंड रेगुलेट करने के लिए जो बनाते हैं उसको बोलते हैं एक्ट, और जो कंबाइन है वो है लॉ। ठीक है, क्लियर? देन सेकेंड पॉइंट देखेंगे कि स्कोप, किसका स्कोप कितना है, कौन कितना इफेक्टिव है कि नहीं? सो द एज लॉ इज जेनेरिक मतलब ओरिजिनल, जेनेरिक मतलब ओरिजिनल, एंड हैव ए ब्रॉडर स्कोप, बहुत ही लंबा बड़ा है, स्कोप इज वेरी ब्रॉड। क्लियर? एंड एक्ट इज मोर specific and have a narrow scope। ओके, क्लियर? आ गया समझ में? नेक्स्ट देखेंगे स्टेटस। किसका स्टेटस क्या है, कौन किसके बाद आता है? लॉ comes before act, लॉ फिर एक्ट, एंड इधर क्या है? एक्ट comes after लॉ बनने के बाद ही उसके अंदर हम एक्ट बना सकते हैं। ओके, क्लियर? नेक्स्ट है एम और ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है दोनों का? क्लियर? जैसे कि लॉ का एम क्या है? लॉ एम्स टू व्हाट शुड एंड शुड नॉट बी डन, व्हाट शुड एंड शुड नॉट बी डन। जैसे कि हमने बोला सोसाइटी में क्या करोगे क्या नहीं करोगे, वो जो टोटल एक्सपीरियंस उसमें आएगा, है कि नहीं? क्लियर? सही है। बाकी जो एक्ट का है, एक्ट इज एम्स टू एक्सप्लेन लॉ एंड व्हाई एंड हाउ लॉ आर एनफोर्स्ड टू। एक्ट एम्स टू एक्सप्लेन लॉ in detail, clear? In detail, and why and how the law
इज प्रैक्टिस्ड. क्लियर? उसको हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे, दैट इज रिलेटिंग टू दैट. क्लियर? देन द फाइनल वन, द फंक्शन. काम क्या है? ओके, लॉ का काम क्या है? देखो स्टूडेंट्स, इट्स फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट द पीपल. इट्स फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट द पीपल interest. Clear? To people interest in the society by maintaining peace. By maintaining peace and stability. पीस और स्टेबिलिटी मेंटेन करके सोसाइटी में जो लोग हैं उनका जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करना है लॉ का रूल. एक्ट का भी वही है, बट एक्ट का भी वही है. ठीक है? इट्स फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट पीपल एंड इंटरेस्ट ऑन ए पर्टिकुलर और स्पेसिफिक मैटर. स्पेसिफिक मैटर. ठीक है? ये शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं बोल रहा हूं. ठीक है? इट्स फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट पीपल एंड इंटरेस्ट ऑन ए पर्टिकुलर और स्पेसिफिक मैटर. क्लियर? एक स्पेसिफिक मैटर पे जाता है एक्ट, और लॉ जो है वो कंबाइंड मैटर. क्लियर? ओके. So students, with this we have completed our law introduction class. Clear? And in the further from the next class, clear, we will start our basic topic, that is commercial law and its different act under commercial law. Clear? So that's it for today. Hope for your good day. Thank you.